Hi, dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Myself, Dr. Sijat Ahmed Mir, Senior Lecturer of Physics, Government Boys Higher Secondary School, Pampur. Now, today my topic is force and its relation with motion. This topic is important for class 9th as well as it's fairly good for class 11th. So, students, please give keen interest in this lecture. I hope you will enjoy it. And if you do have any query, then you can just text me on my WhatsApp number 9797012346 and I will reply your queries there. Now let us start. Force and its relation with motion. Now to understand the force and its relation with motion, we need to go back in the history of science. That's I mean to say Aristotle era. Aristotle was one of the great philosopher of his own times. Okay, so he gave concept of the motion first. He discussed with the motion. So his view have been challenged later on by very good scientists like I can say Copernicus, Galileo Galilei and so many others, but he has laid the foundation for the subject is called the mechanics, I mean the motion. So to understand it, let us go to his era and try to understand what is the base of this motion and how we can understand it, because most of the students is having a confusion in this particular section of their syllabus. So try to understand it. Now what was Aristotelian view? I will give the Aristotelian view. He has classified the motion. Later I will tell you what is motion, but first of all he is actually classified the motion in two categories. One category is natural motion and the second one is violent motion. Seems to be a very very awkward in saying this natural motion and violent motion, but we start with this in the science and you will understand it how important it is to us also. These were the two classifications of the motion, and as per the Aristotelian, ये natural motion हम किसको कहेंगे and violent motion हम किसको कहेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ. मैं Aristotelian view दे रहा हूँ आपको. उसके हिसाब से जो object जिसमें एक inherent force लगेगा, I mean we have not given any force to that object, but yet it is moving, yet it has movement. Okay, so as per Aristotle, the motion carried by such an object is called the natural motion. Okay, for example, the motion of the celestial bodies, the motion of earth. Okay, so like that ऐसे objects में जिनमें हमने कोई force नहीं दिया, but force is there as an inherent property. As per the Aristotle, that motion is called the natural motion. But see, look here, as per his violent motion is considered. As per the violent motion is that, as per the Aristotelian view, the violent motion is that where we impose force. So here imposition of force is important. In natural motion there was no importance of imposition of force because imposition of force was considered not there, but inherent force. Here in violent motion we considering what? The imposed force. Okay, so that's why it's called the violent motion. See, for example, if there would have been a flood, under the flood situation many of the boulders are moving because of that flooding water. तो ये जो motion उस boulder में आए ना, it's called the violent motion because the force has been imposed on that boulder. Got it? Very good. So similarly, अगर branches of the trees हिल रहे हैं ना wind की वजह से, अगर वो हिल रहे हैं तो वो wind की वजह से हिल रहे हैं, तो हमने उसको impose force किया. Fine, you got? तो ऐसी motion of branch जो branch of a tree है उसको Aristotle ने बोला था violent motion. We started with this and now understand what is the relation. This is the topic in class, directly in class 9 syllabus, force and its relation with the motion. Now you got it? मैं nutshell में बोलता हूँ. nutshell में जब Aristotelian view देखेंगे motion का तो उसका motion का मतलब ये है movement. क्या मतलब है? movement. movement किसकी? movement on an object. अगर movement object में होगी then object is said to be in motion. वो अलग बात है, उसने दो किस्में motion के बोले थे, natural और violent, but in nutshell the definition of motion as per the Aristotle is movement of an object. I mean in other words the change in the position of an object. Okay, और हम बोल सकते हैं
change in position, change in position of an object. Okay, हम ऐसे बोल सकते हैं this was the Aristotelian view of motion. So अगर किसी चीज में मूवमेंट होगी, अगर कोई चीज अपनी पोजीशन चेंज करे, ऐसे में हम बोल सकते हैं वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है ना, एज पर अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटेलियन व्यू, ठीक है. बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मोशन एज आई सेड, ओके, नेचुरल एंड वायलेंट मोशन. लेटर ऑन दिस इज समहाउ मॉडिफाइड बाय द गैलीलियो गैलीली. गैलीलियो गैलीली ने क्या किया, ठीक है, गैलीलियो गैलीली ने क्या किया, उसने बताया कि ये जो मोशन है ये नहीं है मूवमेंट, ओनली पोजीशन. उसने बोला टाइम फैक्टर इज मिसिंग, यानी मोशन की जब आप बात कर रहे हो एज पर द गैलीलियो, ठीक है, एज पर द गैलीलियो जो ये है मैं आपको बता रहा हूं, एज पर द गैलीलियो जो टाइम फैक्टर है वो मिसिंग है. मतलब क्या है, तो यू अंडरस्टैंड इट. दिस वाज द क्रैक्स ऑफ द होल थिंग, व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड. मामला ये है कि जो एरिस्टोटल ने बोला था दैट चेंज इन पोजीशन यानी मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोशन, बट दैट हैज बीन मॉडिफाइड बाय द गैलीलियो. व्हाट गैलीलियो मेक ए मॉडिफिकेशन, मैं वो मॉडिफिकेशन आपको बोल रहा हूं. द मॉडिफिकेशन इज ही सेड द एरिस्टोटेलियन हैज मिसिंग द टाइम फैक्टर देयर. यानी हमें बोलना चाहिए इट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट और मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट विद रेस्पेक्ट टू द टाइम. दिस इज द गैलीलियोज मोशन. गॉट इट नाउ. जहां पर भी मूवमेंट इन्वॉल्व होगी यानी जहां पर भी चेंज इन पोजीशन इन्वॉल्व होगी बट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स द मोशन. अगर विद रेस्पेक्ट टू टाइम नहीं बोला दैट इज द एरिस्टोटेलियन व्यू ऑफ मोशन. बट अगर आपने विद रेस्पेक्ट टू टाइम लिया जो कि करेक्ट भी है, दैट्स द गैलीलियो व्यू ऑफ मोशन. सो अगर हम इस पे आ जाएंगे मॉडिफाइड पे, हम बोलेंगे चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम. बताइए जनाब, अगर किसी चीज में चेंज इन पोजीशन में रब कर रहा हूं, मैं कुछ समझा रहा हूं आपको. अब एरिस्टोटेलियन व्यू हमने समझी, अब गैलीलियो व्यू हमने समझी. क्योंकि गैलीलियन व्यू इज द ग्लोबली एक्सेप्टेड व्यू, अब यही रहेगा हमें, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम. डियर स्टूडेंट्स, whenever there is change in position with respect to time, suppose change in distance with respect to time, a change in displacement with respect to time. Okay, that is the with respect to time. When you traverse, when you traverse some distance or when you traverse some displacement, and you are measuring the things with respect to time, do you know what about you are speaking? अगर distance versus time लिया तो आप speed के बारे में बोल रहे हो. अगर displacement versus time लिया तो आप velocity के बारे में बोल रहे हो. और अगर आपने velocity को with respect to time लिया तो आप acceleration के बारे में बोल रहे हो. तो ये फाउंडेशन है. सो सबसे बेसिक फंडामेंटल जो क्वांटिटी आपको मेजर करने में लगी मोशन में वो है स्पीड. ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल, और हम लिख सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज. ठीक है, क्वांटिटीज ऑफ मोशन. जो फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मोशन ये है कौन सा वाला, पहला स्पीड. जानते हो क्यों? बिकॉज स्पीड जो है वो है डिस्टेंस ओवर टाइम. सबको शायद पता होगा दैट इज डिस्टेंस ओवर टाइम और डिस्टेंस पर टाइम. ओके, सेकेंड वन वेलोसिटी. वेलोसिटी जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. ओके, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. See, I have taken the things with respect to time. Okay, समझ में आई? Oh, the third is acceleration. Okay, acceleration. And what is acceleration? It is velocity over time. Okay, it is velocity over time. And we can go on and carry on with respect to times. Okay, understood? So ये मैं बोल रहा हूँ, these are the basic quantity to know the motion. Regarding the motion is the speed, and then velocity, and then acceleration. But many a times we are also considering the displacement and displacement, distance and displacement. But that is the Aristotelian view. But Galileo view से हम यहाँ से शुरू करते हैं, speed, velocity, acceleration. So motion is not something concentrated on a particular definition. Motion involves all those things where there is a change in position but with respect to time. तो यहाँ से शुरू होगा, फिर आगे आगे पता नहीं कहाँ तक जाएगा.
से जैसे मैं आपको फोर्थ बताऊंगा, फोर्थ है जिसको हम जर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जर्क, दैट इज एक्सेलरेशन पर टाइम, ठीक है, एक्सेलरेशन पर टाइम। ऐसे ही आप आगे आगे जाओ, आप अगर फिफ्थ लिखोगे, ठीक है ना, तो आप लिखोगे स्नैप, ठीक है, तो स्नैप जो है दैट इज जर्क बाय टाइम, जर्क बाय टाइम। Okay, you can carry on. There is so much option, and after that you can have another thing. से jerk के बाद आप जैसे मैंने आपको बताया आप बोल सकते हो many more terms. Okay, then see, look here. Distance you taken with the time is speed is the basic fundamental quantity which is required to discuss the motion, and then velocity, that is displacement over time, and that's acceleration and velocity over time. Jerk, that's acceleration over time, and snap, that is jerk over time. मैं आपको बता रहा हूँ आप, चलिए आगे चलते हैं आप, ठीक है। सो यू नो मुझे सब में क्या बोलना है, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड द मोशन, मैं अभी दे रहा हूँ फोर्स एंड मोशन के बीच में रिलेशनशिप। देखिए आप, अब आगे चलते हैं, समझ में आया आप लोगों को कि ये चीजें बड़ी फंडामेंटल है किसमें, एक मोशन को एक्सप्लेन करने में। अब देखिए एरिस्टोटल म्यू, फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, व्हाट इज द मोशन, मोशन इज एक्चुअली चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये फाउंडेशन है, उसके बाद आप आगे कुछ भी बोल सकते हो, इसके बाद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जर्क, ओके, एंड मेनी मोर थिंग्स। नाउ अब ये है कि फोर्स के साथ कौन सी रिलेशनशिप है और कैसे है। अगर मैं फोर्स की सिंपल डेफिनेशन बोल रहा हूं, फोर्स की, ओके, इट इज पुश आर पुल, ये पुश आर पुल बोला जाता है। और इस पुश आर पुल की जो सोर्स है, यानी जो सोर्स होता है, या तो ग्रेविटेशन है, ठीक है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, या इसको इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना, या इसकी सोर्स है मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक, या इसकी सोर्स इलास्टिक हो सकती है, एंड मेनी मोर, ये सारे इसके सोर्सेज हो सकते हैं, ये इसके सोर्स है। यानी मैं बोल रहा हूं फोर्स इन सिंपलर टर्म्स इज पुश आर पुल। दिस पुल आर पुश कैन जनरेटेड फ्रॉम ग्रेविटेशन, इट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक बैकग्राउंड, और इट कैन बी इवन एस्टैब्लिश्ड बाय मैग्नेटिज्म और इलास्टिक। ओके, एनीवेज मैं आपको ये बता रहा हूं कि मतलब ये जो है पुश आर पुल है। आप देखिए जाइए एरिस्टोटल म्यू पे वापस, उसने क्या बोला, नेचुरल मोशन, वायलेंट मोशन। नेचुरल मोशन में कोई आपको वहां पर फोर्स नहीं देना है, ऐसे इंपोज नहीं करना, इट इज इनहेरेंट, बट इन वायलेंट मोशन यू हैव टू इंपोज द फोर्स। दैट मीन्स if you apply the force, then only it will attain some speed, then only if direction is considered it will attain velocity, if velocity is taken with respect to time it will attain the acceleration, and if that acceleration is taken with respect to time then it will become a jerk. So many more things. So मुझे ये बोलना है यहाँ पर सिर्फ ये चीजें मोशन की स्पीड वगैरह तभी पॉसिबल है when you impose the force. समझ में आई बात, तो ये आपको याद रखना है। तो ऐसे में what is the relationship, do you know that, बोला गया है कि जितना आप बॉडी को एक्सेलरेट करोगे, ठीक है ना, उतना उसके पास, यानी जितना आप एक इंपोज करोगे फोर्स एरिस्टोटल म्यू से, उतना बॉडी में एक्सेलरेशन बढ़ेगी, ये बोला गया है, ठीक है ना, जितना फोर्स ज्यादा दोगे उतनी एक्सेलरेशन बढ़ेगी। यू नो एक्सेलरेशन इज वेरी वेल ए क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्स द मोशन। तो ये मोशन है, ये फोर्स है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग द फोर्स, right hand side of this equation is representing the acceleration, that is actually a motion because part of the motion. Okay, got it? Now then further it has been found that when you actually convert direction proportionality into equality, here comes a constant, that's mass of an object. So F is equal to ma. This is the established relationship between force and the motion, and many more. This one is considered the fundamental one. Okay, got it? So समझ गए आप। तो मैंने पहले बताया मोशन क्या होती है, जिसमें भी डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्टेंस होगी, यानी चेंज इन पोजीशन होगी, हम बोलेंगे मोशन है, बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेंगे तो वो गैलीलियन व्यू है, ठीक है। और सबसे फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मोशन है स्पीड, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, फिर जर्क, फिर उसके आगे हम जाएंगे स्नैप, फाइन। तो फिर हम बहुत और जा सकते हैं, इवन हम पोप पे भी जा सकते हैं। बट हियर साइंटिस्ट हैव ए कॉन्सेंसस कि हम एक्सेलरेशन तक ही इसको डिस्कस किया करेंगे, वहीं से हम चीजें को स्टॉप करेंगे, बाकी चीजें उसके साथ रिलेट करेंगे। इसीलिए मैंने वही एक्सेलरेशन लिया। तो साइंस जो हमने एनालाइज किया, साइंस में जितना फोर्स दोगे किसी बॉडी में उतना वो एक्सेलरेट ज्यादा करेगी, और अगर आप डायरेक्शन प्रोपोर्शन हटाओगे तो मैस आ जाएगा। दिस F इज इक्वल टू ma, दिस इज द एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड द मोशन। सिंपल,
here acceleration, but acceleration is a part of motion. Got it? Okay, so let us move further. अब ये जो है, जो हमने रिलेशनशिप ली, जो हमने फोर्स किया, द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड द मोशन, वो हमने लिया F इज इक्वल टू ma, वो हमने ये लिया. अब हमें बोलना है कि ये कौन सा फोर्स है, ये बैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है ना, कि ये मैं अनबैलेंस्ड फोर्स की बात कर रहा हूं. ये अब क्वेश्चन मार्क है, इज इट ए बैलेंस्ड फोर्स और इज इट इनबैलेंस्ड फोर्स, ये बोलना है. ये जो इक्वेशन है, बाय द वे दिस इक्वेशन इज द न्यूटन सेकंड लॉ, बट हियर F इज इक्वल टू ma, हमें ये बोलना है कि बैलेंस्ड है ये फोर्स कि अनबैलेंस्ड है. देखिए जनाब, अगर आप कहीं जगह ग्राउंड में खड़े हो लाइक दिस, और ये ग्राउंड है, आप खड़े हो यहां पर, आपके दो फोर्स आ जाएगा. एक आपका वेट आ जाएगा, वेट इज नथिंग बट इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड विच इज गिवन एज m into g, mass into acceleration due to gravity. g small g is acceleration due to gravity. बट यहां इसके अपोजिट में रिएक्शन आ जाएगी, दैट इज r. और ये w जो है ना, ये वेट है, उसके नॉर्मल टू द सरफेस, ये ग्राउंड है यहां पर, दिस इज ग्राउंड, और नॉर्मल टू दिस ग्राउंड इज द रिएक्शन. और ये रिएक्शन और वेट बराबर है. बताइए टोटल फोर्स कितना होगा यहां पर, टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स यहां पर हुआ R प्लस W, चूंकि सिंस ये W एंड R बराबर हैं, देयरफॉर टोटल फोर्स जो होगा, जो टोटल फोर्स यानी मैं इसको FR लिखूंगा, यानी रिजल्टेंट फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा W, यानी R के बदले हम फिर भी लिखेंगे W, देन प्लस W. अब मसला यहां पर है, अब मसला ये है, क्योंकि W डाउनवर्ड्स है, R अपवर्ड्स है, तो इसलिए मैं लिखूंगा W इज इक्वल टू माइनस R. तो मैं यहां पर लिखूंगा, यानी माइनस W मैं ऐसे लिख सकता हूं, W इज इक्वल टू, ऐसे करेंगे, R के बदले R ही लिखेंगे, W के बदले माइनस R लिखेंगे, तो ये कट हो जाएगा. सो योर रिजल्टेंट फोर्स कम्स आउट टू बी 0. ओके, सो मतलब मुझे ये बोलना है कि जो हमें फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल जो है, जो फोर्स हमें खींच रहा है, ग्राउंड हमें रिएक्शन दे रहा है, ये दोनों बराबर है, फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, तो 0 बनता है नेट फोर्स. यानी दीज टू फोर्स आर कॉल्ड द बैलेंस्ड फोर्सेस, यानी जो वेट है और जो रिएक्शन है, दीज आर नोन एज बैलेंस्ड फोर्सेस. सिमिलरली अगर आप टग ऑफ वार खेल रहे हो, टग ऑफ वार खेल रहे हो अपने फ्रेंड के साथ, और 500 न्यूटन का फोर्स वो भी दे रहा है, ठीक है ना, आप इस साइड में दे रहे हो 500 न्यूटन, वो 500 न्यूटन इस साइड में दे रहा है, लाइक दिस, फाइन. तो क्या होगा, जितना फोर्स आप यहां से लगा रहे हो उतना फोर्स वो आपका फ्रेंड वहां से लगा रहा है. व्हाट इज द नेट फोर्स? 0. These forces are called the balanced forces. Okay, got it? So in case में बोल रहा हूं, suppose अगर जो मैं यहां पर बोल रहा हूं रिएक्शन बड़ी होगी वेट से, या इस मामले में, हमारे मामले में, तो हम हवा में उड़ जाएंगे, बिकॉज रिएक्शन जब ज्यादा होगा, वहां पर कुछ पार्ट जब मैं माइनस करूंगा यहां पर, तो कुछ पार्ट रिएक्शन का बचेगा, तो दैट मीन्स एक फोर्स लगेगा, जो थोड़ा सा लगेगा वो ऊपर साइड में लगेगा, तो हम हवा में उड़ेंगे. फाइन, बात समझ में आ रही है? तो अगर हमें सपोज वेट ही ज्यादा होगा रिएक्शन से, तो जब दोनों को माइनस करेंगे, सिंस वेट इज ग्रेटर देन द रिएक्शन, सो देयर रिमेन्स ए पार्ट ऑफ द फोर्स, बिकॉज वो बैलेंस नहीं हो रहे ना, तो कुछ बचेगा, दैट मीन्स हम ग्राउंड में ही रह जाएंगे. तो ऐसे में उन फोर्सेस को उस वक्त बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस. ठीक है, समझ में आई? तो बैलेंस फोर्स वो होता है that actually gives the resultant 0, but unbalanced forces are those forces where resultant is not 0. Okay, there is some finite value, so उनको बोलते हैं unbalanced forces. और कुछ टर्म्स में, कुछ बुक्स में you will also find the net force, you will also find the name resultant force. Unbalanced force, net force, resultant force, it is one of the same thing. और जो ये फोर्स है ना, ये फोर्स, this is unbalanced force. चलिए ये खत्म हो गया, दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स मीन्स नेट फोर्स. सो हियर इन दिस इक्वेशन व्हिच इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड द मोशन, देयर F इज अनबैलेंस्ड फोर्स, आई मीन द नेट फोर्स. ओके, इफ यू विल गिव दिस नेट फोर्स टू एनी बॉडी, ओनली देन इट विल एक्सेलरेट, अदरवाइज इट विल नेवर एक्सेलरेट. जब आप एक कार्ट को यहां से पुल करोगे, कार्ट होगी कोई, पुश करोगे उसको, अगर आप उसको पुश करोगे, ओके, व्हाट विल हैपन, दैट मींस वहां से रेजिस्टेंस आ जाएगी, किसकी? फ्रिक्शन की वजह से, और आप यहां से दे रहे हो, क्योंकि अगर आपका पुश उसके ऊपर ज्यादा होगा तो वहां पर अनबैलेंसिंग द फोर्स हो जाएगी, वहां पर नेट फोर्स रहेगा.
एंड वो नेट फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ दैट कार्ट। और फिर कितना होगा फोर्स, इतना होगा तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, यहां से पता चल जाएगा F by m इज इक्वल टू ए, एम को यहां लाएंगे ए निकलेगा, सीधे हम बोल सकते हैं, यानी उस वक्त हम बोल सकते हैं F by m इज इक्वल टू ए। तो देखेंगे कितना फोर्स दिया, कितना मैस है उस कार्ट का, सीधे ही पता चलेगा एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी। लेकिन कौन सा फोर्स, वंस अगेन नेट फोर्स। बैलेंसिंग फोर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक्सेलरेट करेगी बॉडी सिर्फ अंडर द एक्शन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स और नेट फोर्स। अंडरस्टैंड? ओके, देखिए अब आगे ये है, अगर आपके पास दो चीजें हैं, इनर्शिया क्या होता है? ओके, इनर्शिया किसको बोलते हैं? एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर से आप एक ऑब्जेक्ट है, ये है, ओके, इसका मास m है, आप ना इसको फोर्स दे रहे हो ऐसे ताकि ये आगे जाए। ओके, तो ये जब आगे जाएगा सपोज, तो आपको बोलना है कि ये है कि ये किस एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, वो भी आपको पता चल जाएगा। और अगर इससे छोटा ऑब्जेक्ट देंगे उसके ऊपर भी ये फोर्स देंगे, ठीक है। इसका हम ऐसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे कैपिटल M और इसको स्मॉल m, इसके ऊपर फोर्स, ठीक है। और इसमें जो एक्सेलरेशन आ जाएगी इसकी वजह से वो कैपिटल A, और इसको जो एक्सेलरेशन आएगी वो स्मॉल a। फाइन। अब बताइए, सीधी सी बात है, बताइए जब आप इसको सेम फोर्स दोगे बड़े ऑब्जेक्ट को जिसका मास कैपिटल M है, छोटे ऑब्जेक्ट को भी दोगे जिसका मास स्मॉल m है, तो बताइए कौन पहले मूव करेगा? जिसके पास बड़ा m है कि जिसके पास छोटा m है? जिसके पास मास ज्यादा है, तो ये मूव नहीं कर पाएगा। आप समझ गए ना बात? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये रेजिस्ट कर रहा है अपनी स्टेट को चेंज करने में। सो टू ब्लॉक्स जो मैंने यहां लिए, एक का कैपिटल M, एक का स्मॉल m, दे आर एट रेस्ट। और जब हम इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पुश करने से या पुल करने की कोशिश करें, दो में से एक चीज, तो उससे क्या होगा? ये अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहता है, रेजिस्ट करता है। एंड सच अ रेजिस्टेंस इन मैकेनिक्स कॉल्ड द इनर्शिया। सो व्हाट इज एन इनर्शिया? Somebody will ask you. Inertia is that property of a substance due to which it resists to change the state. कौन सी state? If it will be in rest, it resists to change its state to get from rest to the motion. Or if it is in the motion, then it even resists to change its state of motion into the state of rest. अगर ये चेंज नहीं करना चाहता है, वो चेंज नहीं करना चाहता है, उसको बोलते हैं इनर्शिया। ओके, अब इनर्शिया किस में ज्यादा है? हमने देखा जिसमें मास ज्यादा है उसमें इनर्शिया ज्यादा है, जिसमें मास कम है उसमें इनर्शिया कम है। तो हमने देखा कि इनर्शिया और मास एक दूसरे के साथ बहुत रिलेटेड है। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास, मोर द मास मोर द इनर्शिया। और हम ऐसे बोल सकते हैं मोर द क्वांटिटी ऑफ मैटर, बिकॉज मास मीन्स क्वांटिटी ऑफ मैटर, मोर द इनर्शिया। जितना मास ज्यादा होगा उतना इनर्शिया भी ज्यादा होगा, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस है। बच्चों सुन लीजिए मेरी बात, आप शायद इसको अंडरस्टैंड ऐसे कर पाओगे। जब हम कोई ना कुर्बानी का बकरा लेते हैं ईद में, तो हम क्या करते हैं, उसको उठाते हैं फिर ऐसे ऐसे करते हैं ताकि हम गेस करेंगे इसका जो मास है कितना होगा, ठीक है। हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम वहां पर यही चीज तो कर रहे हैं। हम देख रहे हैं जब उसको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस बेड को जो हम लेंगे वहां पर, ओके, शीप लेंगे, कौन सा लेंगे, गोट लेंगे, जो हम उसको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब वो रेस्ट में होगा। हम उसको मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब हम उसको मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब रेस्ट से मोशन में, वो उसका इनर्शिया होगा ना। वो इनर्शिया वो नहीं चाहेगा मैं रेस्ट से मोशन में आ जाऊं, बिकॉज इनर्शिया चाहता है कि वो अपना स्टेट मेंटेन रखे। लेकिन हम कराते हैं, तो जितना वो रेजिस्ट ज्यादा करेगा उसको स्टेट चेंज करने में उतना, दैट मींस उसका ज्यादा इनर्शिया होगा। और जितना इनर्शिया ज्यादा होगा उसका इनडायरेक्टली मतलब है उसके पास मास ज्यादा है। और हम सीधे ही बोलते हैं कि ये बड़ा है कि छोटा, मतलब उसका मास ज्यादा है कि कम होता है। दैट मींस वी गेस लाइक दिस। ओके, तो इनर्शिया पता से चलता है मास क्या है। मैं आप स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, छोटे छोटे स्टूडेंट जो हम सुन रहे हैं हमें, मैं उनको बोल रहा हूँ, अब ऐसे में ऐसा करते हैं हम, तो आप जैसे बोल रहे हैं कि मास और वेट के बीच में मैक्सिमम टाइम्स कंफ्यूजन होता है। वो लोग ना मास को ही वेट बोलते हैं समटाइम्स, बट कंफ्यूजन इज देयर ए वैलिड वन, बिकॉज लेमैन के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में लेमैन को ये कंफ्यूजन क्यों होता है, दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। मैं आपको बता रहा हूं क्यों हो रहा है। वेट जो है दैट्स m into g. This acceleration due to gravity on the surface of earth is constant, so we took this is proportional to mass, और mass is proportional to weight. अगर mass दुगना हो जाएगा, ठीक है ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट का mass 2 times हो जाएगा तो weight भी 2 times increase हो जाएगा। If the mass increases by 3 times, the weight also increases 3 times because they are proportional to each other. Got it? तो वो proportional है।
सो अगर mass 4 times increase हुआ तो same is the fate with weight, तो weight भी increase हो जाएगा ना. तो इसीलिए लोगों को mass और weight के बीच में confusion होता है, बट कंफ्यूजन से उनके बिजनेस पे ज्यादा असर नहीं आता है, बिकॉज उनको पता है जितना अगर मैस इंक्रीज हुआ तो जितने टाइम्स वो हो जाएगा उतने टाइम्स वेट भी इंक्रीज हो जाएगा. और सेम मैस और वॉल्यूम के बीच में लेमैन को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वहां भी यही प्रॉब्लम है कि जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम भी प्रोपोर्शनल टू मैस है. आप समझ गए ना बात, बी इज प्रोपोर्शनल टू एम. अगर सपोज 1 kg ऑफ राइस आपने किसी बैग में रखा, उसने कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, तो अगर आपने 2 kg ऑफ राइस रखे तो दुगना वॉल्यूम हो जाएगा, बट दैट डजंट मीन मैस इज द वॉल्यूम. बट उसको पता है, उस जनाब को जो उसके साथ कर रहा है, कि अगर मैं मैस को इंक्रीज कर रहा हूं ना तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है. अगर मैं मैस को 2 टाइम्स इंक्रीज करूंगा वॉल्यूम 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. अगर मैं मैस 3 टाइम्स इंक्रीज करूंगा वॉल्यूम इंक्रीज 3 टाइम्स करेंगे. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वॉल्यूम के साथ इसको डायरेक्टली रिलेशन है, इनडायरेक्ट है, बट उनको तो उनका जो एक्चुअली मकसद होता है ना वो पूरा हो जाता है, उनकी एम होती है. सो दैट्स वाई हम उनको लेमन में वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन दे आर नॉट सेम. जैसे स्वीटनेस है, जितने केजी आप बढ़ाओगे शुगर का ना तो स्वीटनेस नहीं बढ़ेगी ना, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, स्वीटनेस नहीं बढ़ेगी. तो लाइक दैट मैस जो है इट्स प्रोपोर्शनल बट नॉट इक्वल टू द वॉल्यूम. गॉट इट. तो ये कंफ्यूजन होता है हम लोगों को, तो मैंने आज आपको बताया वो कंफ्यूजन क्यों होता है, इसलिए होता है. अब चलिए, अब मैं आपको समझा रहा हूं व्हाट इज इनर्शिया. ओके, ये इनर्शिया मैं फिर से बता रहा हूं आपको. सो इनर्शिया इज नथिंग बट व्हाट इनर्शिया रिप्रेजेंट्स इन मैकेनिक्स रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिसिटी. ओके, जैसे रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी में अपोजिशन दिखाते हैं ना, मैकेनिक्स में इनर्शिया अपोजिशन, लेकिन किसको, मोशन को. तो वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, मैस को. इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी मैस को. जितना मैस उतना इनर्शिया ज्यादा, जितना मैस कम उतना इनर्शिया कम. सो हम बोल सकते हैं इनर्शिया is actually proportional to the mass, more the mass, more the inertia, less the mass, less the inertia. Got it? So मैंने क्या पढ़ाया अभी तक आपको, मैंने पढ़ाया what is the relationship between force and motion. मैंने आपको पढ़ाया अभी तक what is the balanced and unbalanced forces. मैंने अभी तक आपको बताया कि what is inertia. So मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि मैं क्लोज कर रहा हूं इस लेक्चर को, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे. लेकिन यहां मैंने क्या पढ़ाया अभी तक, फर्स्ट फिर से रिपीट करता हूं. पहले मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया क्या, what is the relationship between force and the motion. Okay, got it. Aristotle view भी दी, Galilean view भी दी. Got it. उसके बाद मैंने बताया कि सबसे बेसिक फाउंडेशनल क्वांटिटी जो है मोशन को वो स्पीड है. उसके बाद वेलोसिटी अगर डायरेक्शन दे दी. उसके बाद हमने एक्सेलरेशन पे बात की, उसके बाद जर्क पे बात की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड देन वी वेंट टू द इनर्शिया या बैलेंस बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. और मैंने क्या बोला, बैलेंस्ड फोर्सेस जहां पर रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा ना तो उन फोर्सेस को बोलते हैं बैलेंस्ड. सपोज वेरियस फोर्स आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट but the resultant force is zero, those forces are called the balanced forces. लेकिन अगर उनका resultant finite रहा, यानी finite greater than zero और less than zero, except zero में बोल रहा हूं, तब जाके हम उसको बोलते हैं unbalanced force. और it is unbalanced force which results in the acceleration, and acceleration is only because of the force. Acceleration is the quantity of motion and force जो है वो है इसके बीच में relation, और मैंने वो दी F is equal to ma. Left hand side force था, right hand side acceleration. Acceleration is the witness of motion, and here F is the force. This is a good relation between force and acceleration. By the way, it's the Newton's second law, and rest of the things I will discuss in the next lecture. Stay tuned with me and wait for the next lecture. Thank you very much, my dear students.